Before going into details of chapter 5, we need to understand certain terms which are vital for genetics. First and foremost is a concept of gene. In this lecture, we will understand what is gene and what is exactly concept of a gene. First, definition of a gene. Gene is a segment of DNA that encodes RNA or protein. I repeat, gene is a segment of a DNA that encodes RNA or a protein. A gene controls particular character or a trait. So gene is a segment of a DNA that encodes RNA or a protein, and it controls particular character or a trait. Gene is considered as a hereditary unit or unit of a inheritance. So basically gene is a hereditary unit or a unit of a inheritance. It is responsible for a control of a trait or a character. Now look at this figure. Here a gene A is given. So this is a double stranded DNA molecule and it is a small segment of a DNA, that is gene A. Gene A encodes one RNA, then that RNA is responsible for a synthesis of a protein. Say protein is an enzyme A. So here I will say gene A, that is a segment of DNA, has a information for a synthesis of a RNA and protein, and that protein is basically enzyme. Now enzyme A is responsible for a biochemical process where it converts a chemical called S into P. Now this P is, which is generated by S because of enzyme E, is a colored molecule, colored pigment, which is ultimately responsible for the flower color or a color of a flower. So here color of a flower is a trait or a character. Color of flower is because of a production of a chemical P. Chemical P is produced because of a activity of enzyme A. Enzyme A is produced from mRNA and mRNA is produced from a gene A. So ultimately gene A is responsible for a production of a pigment, that is a chemical P, and that pigment is responsible for a character called a flower color. So I will connect now a character flower color to a gene A. Ultimately I will say gene A is responsible for a control of a character called a flower color. बराबर, इसको हम थोड़ा जेनरिक वे में समझते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक जीन ए बताया गया है. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पे आया हुआ एक छोटा सा सेगमेंट है. अब जीन ए के वजह से एक आरएनए का सिंथेसिस होता है. यहाँ इसको हम एमआरएनए कहते हैं. एमआरएनए टाइप ऑफ आरएनए का सिंथेसिस होता है. एमआरएनए के वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नाम की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनता है. ये प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करता है जिसको हमने नाम दिया है एंजाइम ए. अब ये एंजाइम एक बायोकेमिकल प्रोसेस को कैटेलाइज करता है जिसमें एक केमिकल है एस, उसका कन्वर्जन दूसरे केमिकल पी में होता है. अब पी एक कलर्ड पिगमेंट है जो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर, जिस प्लांट का ये जीन है उसके अंदर फ्लावर के कलर के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो फ्लावर का जो कलर है वो केमिकल पी के वजह से है. लेकिन केमिकल पी क्यों जनरेट हुआ? बिकॉज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ऑफ ए. एंजाइम ए किसके थ्रू जनरेट हुआ? फ्रॉम एमआरएनए. और एमआरएनए को किसके जनरेट किया? जीन ए ने. तो अगर जीन ए होता ही नहीं तो, या तो नॉन फंक्शनल होता, तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता. एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो पी नाम का केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता और अल्टीमेटली फ्लावर कलर है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता था. तो मैं जो फ्लावर कलर का जो कैरेक्टर है इसको कनेक्ट करता हूँ जीन ए से. फाइनली मैं ऐसा कहूँगा कि जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर कॉल्ड अ फ्लावर कलर. तो ऐसे कोई भी जीन होता है वो खुद डायरेक्टली किसी कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि कैरेक्टर का होना जनरली एक प्रोसेस के थ्रू होता है और हम जानते हैं कि प्रोसेसेस आर कैटेलाइज्ड बाय
enzymes and these enzymes are protein in nature. तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि जीन के थ्रू आरएनए बनता है, आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनता है. ये प्रोटीन जब एंजाइम होते हैं या तो हार्मोन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और यही प्रोसेस अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट ये प्रोटीन्स जीन में से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जीन कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और अ ट्रेट. अब देखिए, हम बायोमोलिक्यूल्स नाम के चैप्टर में 11th में पढ़ चुके हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल. नंबर 1. नंबर 2, all cellular organisms including bacteria and eukaryotes have this double stranded DNA molecule as a genetic material. Now this DNA is a very long molecule. तो उसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं जो जीन के तरह बिहेव कर सकते हैं या तो एज अ जीन बिहेव कर सकते हैं. तो मेरे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पे एक जीन ए है. अब दूसरा एक जीन है, इसको मैंने जीन बी कहा है. एक तीसरा जीन है, इसको मैंने जीन सी कहा है. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जीन ए का एक आरएनए है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम ए बनाता है, जो प्रोडक्शन ऑफ पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अल्टीमेटली फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऐसा एक इमेजिनरी एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जीन बी के थ्रू एक आरएनए बनता है, ये आगे जाके एक प्रोटीन को बनाता है जो हार्मोन की तरह काम करता है. अब हार्मोन बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, उससे काफ़ी कैरेक्टर्स कंट्रोल होंगे. मैं कहूँगा कि ये हार्मोन क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ जीन बी. ऐसे ही यहाँ पे एक जीन सी है जो एक एमआरएनए प्रोड्यूस करता है जो आगे जाके एक प्रोटीन सी प्रोड्यूस करता है. ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया हुआ है और न्यूट्रिएंट के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो न्यूट्रिएंट का सेल में जाना एक प्रोसेस है, ये एक कैरेक्टर है और इसको कंट्रोल करता है प्रोटीन सी और प्रोटीन सी को कंट्रोल करता है जीन सी. तो मैं अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट अपटेक नाम के प्रोसेस को जीन सी से रेगुलर कनेक्ट करूँगा, कहूँगा कि जीन सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंट्रोलिंग अ न्यूट्रिएंट अपटेक. रिपीट करूं कि यहाँ पे ये जो जीन सी है ये एक प्रोटीन बनाता है. ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिचुएटेड है ये प्रोटीन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है न्यूट्रिएंट का. अगर हम जो न्यूट्रिएंट अपटेक नाम के प्रोसेस को देखें, मतलब कि मानो कि ग्लूकोज का सेल में आना, तो ये न्यूट्रिएंट अपटेक एक प्रोसेस है. इसको कंट्रोल करता है प्रोटीन सी को कंट्रोल करता है जीन सी. तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट अपटेक नाम की प्रोसेस को कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन सी. तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ डीएनए. आई रिपीट, जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ डीएनए एंड दे कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और स्पेसिफिक प्रोसेसेस. तो इस तरह से हम जीन कहेंगे जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स आरएनए और प्रोटीन एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट और अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और इट इज़ रिफर्ड एज अ हेरिडिटी यूनिट. हम आगे जाके जब क्रोमोसोम का कंसेप्ट समझेंगे तब बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि वाई जीन्स आर कंसिडर्ड एज अ हेरिडिटरी यूनिट और अ यूनिट ऑफ अ इनहेरिटेंस. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब समझो कि अगर कोई भी डीएनए का सेगमेंट आरएनए बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, देन वी कैन नॉट कंसिडर्ड इज अ जीन और अ फंक्शनल जीन. बराबर, अगर आरएनए बन नहीं सकता है तो इसको जीन के डेफिनेशन में नहीं लाया जाता है. जीन्स आर अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स आरएनए और अ प्रोटीन.